Good evening, friends. Is my voice audible to all of you? Please confirm. You can confirm by chat also. Okay, thanks you for your reply. Hope you all of you are enjoying this lockdown period, and it's your decision which you have taken to learn something in this period. It will help all of you. Now let's start the class. We are starting from this type of business organizations. हमारे पास 4 तरह की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है जिससे हम स्टार्ट कर सकते हैं. First is sole proprietorship, second is partnership firm, third is NGO. This is for welfare work, and second is fourth is company. In sole proprietorship, it is a organization which is owned by only one person. ये सिर्फ वही ऑर्गेनाइजेशन होती है जो एक बंदा चलाता है, जो बड़ी इजी होती है चलाना उसको, और जिसमें टैक्स बर्डन भी काफी लो होता है. बस इसका शॉर्टफॉल ये है कि इसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है. अगर कोई केस आपके ऊपर होता है तो उसके लिए उसका प्रोप्राइटर भी लायबल है रेदर देन ओनली बिजनेस फर्म. और if you need any finance from bank, then it will be difficult to arrange this also from bank in compared to other business organization. If any person have any query, you can raise hand or chat me also, so I can unmute him and we can discuss. Now this is partnership firm. In this finance arrange करना more comparatively easy रहता है proprietorship firm से, and we have additional management skills also because we have more than one person, 2 partner, 3 partner we can have. And disadvantage is this also is unlimited liability like in proprietorship. If we form LLP, then we know there is will be limited liability. LLP is also a form of partnership firm, limited liability partnership, which is formed under MCA. There is a tax burden which is very high. It is a 30% flat. There is no slab in this partnership firm. Pankaj, now my voice is clear or no? Third is companies. This is corporate. It is private limited company, जिसके बारे में सभी ने सुना होगा आप लोगों ने. इसमें फाइनेंस अरेंज करना बड़ा इजी रहता है. जो भी स्टार्टअप्स होते हैं वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं जो इजीली वो फाइनेंस अरेंज कर सकती है इंडिया से, आउट ऑफ इंडिया ऑल्सो. और देयर इज अ लिमिटेड लायबिलिटी ऑल्सो. Then in this case, shareholder and directors are not liable generally for any default of company. The disadvantage is that we have to pay double taxation in this. This company have to pay 25% subject to some condition
और आफ्टर दैट देयर इज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। डिविडेंड के ऊपर भी टैक्स देना होता है, जो आफ्टर कंपनी टैक्स पे करती है 25%। उसके बाद जो प्रॉफिट होता है अगर उसको भी ओनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उस पर भी टैक्स देना पड़ता है। दैट मीन्स डबल टैक्सेशन, and it is very complex to organize because there is a lot of compliances, regular annually compliances with MCA and with the other departments which we need to follow. There is a comparative analysis between sole proprietorship, partnership firm, and corporates. Sole proprietorship is very easy to manage and organize. Partnership is in medium category, and corporate is difficult due to lots of compliances like audits and annual filings. There is a compliance. Partnership is easy. Partnership, there is no compliance in both of these, but in company there is a regular compliances. Like earlier explained, there is no double taxation in proprietorship and partnership. In companies, there is a double taxation which we have to pay at the time of company profit and at the time of distribution of dividend also. In proprietorship, there is a limited liability. In partnership also there is unlimited, but if we form LLP, which is also type of partnership form, limited liability partnership, there is a limited liability like company, and there is a compliances also like company which we need to adhere, like regular annual compliances. Financial ability, sole proprietorship is very less, partnership is medium, and corporate is very easy to arrange finance. These are some examples. Proprietorship, anyone can form with any name, ABC Trading Company, and like that. Partnership form is like any name, but if we form LLP, that it will be XYZ LLP. And corporates is Reliance India Limited, Private Limited, like that, all the companies. And हम पैन नंबर से उसका स्टेटस कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो हमने इसमें डाला है। जो भी किसी भी एसएससी का पैन नंबर होता है उसका जो फोर्थ लेटर होता है, इफ इट इज पी देन इट इज इंडिविजुअल लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप, इफ इट इज एफ फिर वो पार्टनरशिप फर्म होगा, अगर वो सी है तो कंपनी होगा। तो टैक्स बर्डन के लिए सोल प्रोप्राइटरशिप पे नॉर्मल स्लैब लगता है जो सभी पे इंडिविजुअल्स पे एप्लीकेबल होता है, मेंस वुमेन्स। एंड पार्टनरशिप फर्म पे जो एप्लीकेबल होता है 30% है फ्लैट, एंड कंपनीज पे 25% है, उसके लिए कुछ कंडीशन है जिस पे 25% लगता है, अदरवाइज 30% ही लगता है। और डिविडेंड पे आपको एडिशनल टैक्स पे करना पड़ता है विच इज अराउंड 18%। Hope this is clear all of you. Now you can raise a question if anyone have. Kanika is asking, DDTs has been removed. Yes, it is removed with effect from 1st April 2020 with this budget, but it is taxable in the hands of individual. You can ask question if you have any. 5% is a tax which has been paid by the company, and if company distribute dividend, then on dividend individual has to pay tax on his ITR.
Anyone else have any question? तो आगे चलते हैं, किसी को क्वेश्चन नहीं है तो। अगर किसी ने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, उसको कैसे स्टार्ट करना है, कैसे उसको इनकॉर्पोरेट करना है, क्या क्या और उसके लिए कंप्लाइंसेस रहेगी, वो एक चार्ट है ये। अगर किसी को सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट करना है, किसी एक अपने नाम पे या किसी के भी नाम पे, बस उसको अपने नाम पे एक पैन कार्ड अप्लाई करना होगा। और अगर जीएसटी एप्लीकेबल है, अगर चाहे तो इनिशियली भी अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज 20 लाख की लिमिट उसकी क्रॉस हो जाती है तो उसके बाद भी अप्लाई कर सकता है। एंड इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एक पार्टनरशिप डीड उसको बनानी होगी, जो भी पार्टनर्स होंगे उनके बीच में, उसको नोटराइज करा के उसके बेस पे पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। अगर उसको किसी को रजिस्टर्ड कराना है तो उसको सब रजिस्टर के बाद रजिस्टर करा के उसको भी पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं उसका कार्ड। तो इसके दो तरीके हैं पार्टनरशिप फर्म के, या रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म होती है, नोटराइज पार्टनरशिप फर्म होती है। जिसमें डीड एक नोटराइज हो जाती है, एक पार्टनरशिप डीड रजिस्टर्ड हो जाती है, जिसके बाद हम पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट्स की नीड नहीं होती, तो उस पैन कार्ड के बाद हम जीएसटी अप्लाई कर सकते हैं इफ रिक्वायर्ड। So now with company, is my voice audible? Please confirm. Okay. Neeraj Sharma, I can't hear your voice. Please check your internet because everyone is replied that everyone can hear my voice. Now start with company. If we need to incorporate a company, then first we have to take the name approvals, which you can take on the MCA site. एक MCA की साइट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की, जिसपे आप रजिस्टर करके नेम्स अप्रूवल फर्स्ट उसका करा सकते हैं कंपनीज का। आपके पास दो ऑप्शन होते हैं उस केस में, जो भी आप प्रायोरिटाइज में डाल सकते हैं। जो अवेलेबल होगा वहां से अप्रूवल आ जाता है विद इन 1 or 2 days that your name is approved. And meanwhile you can apply DSC for the directors, 2 directors, 3 directors. After getting the DSC, then एक हमें स्पाइस फॉर्म फाइल करना होता है विद एजाइल. It is a new form which is started by the government a year back. Now it is very easy to incorporate a company. You just need to. Okay, okay.
Due to your headphone, maybe their voice problem. स्पाइस फॉर्म करते हैं अब इसमें। स्पाइस ऑफ एक सिंगल फॉर्म होता है जिसमें आपको डिटेल फिल्स करनी होती है और उसके साथ अटैचमेंट जाती है। अगर वो एमसीए पे फाइल कर देते हैं विद मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एंड दिस एजाइल फॉर्म इट इज फॉर जीएसटी। अगर आप जीएसटी भी साथ में कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के साथ में अप्लाई करना चाहते हैं, पीएफ, ईएसआई, तो एजाइल फॉर्म के साथ ऑल सभी ये चीज़ हम एक साथ में अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते हैं तो एजाइल को हम ब्लैंक उसमें अटैच करना पड़ता है। फिर भी एक एमओए फॉर्म अटैच होता है, एक एओए फॉर्म अटैच होता है, एक स्पाइस फॉर्म फिल करके दिस 4 फॉर्म्स सभी आपको उसमें अपलोड करना होता है। देन विद इन 2-3 डेज एमसीए से रिवर्ट आ जाता है इफ इट इज अप्रूव्ड। और कोई क्वेरी होती है तो रीसबमिशन के लिए आपको जाना पड़ता है उस केस में। अगर किसी की क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। किसी की क्वेरी है तो डाल सकते हैं अभी। अगर कोई भी नेम अप्रूव नहीं होता है तो फिर आपको रीअप्लाई करना पड़ेगा नेम अप्रूवल। और नेम अप्रूवल्स के 1000 रुपीज चार्ज होते हैं जो आपको पे करना होता है जब भी। अनिकेत की क्वेरी है फॉर डबल टैक्सेशन। डबल टैक्सेशन वो ऐसे होता है कि हम कंपनी का जब हम पीएनएल बनाते हैं उसकी जो टैक्सेबल इनकम आएगी उस पे हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं विच इज 25% सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। अगर 25% हम उसका टैक्स कैलकुलेट कर लिया है उसके बाद जो भी उसकी आफ्टर टैक्स इनकम आती है वो टैक्सेबल आफ्टर टैक्स इनकम उसके कंपनी के रिजर्व सरप्लस में ट्रांसफर हो जाती है वो। अगर कंपनी उस रिजर्व सरप्लस में से कुछ कम शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है एज अ डिविडेंड, देन अप टू 31 मार्च इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ कंपनी डीडीटी की, लाइक डीडीटी एट द रेट ऑफ 18%। एंड आफ्टर 1 अप्रैल इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल। जो शेयर होल्डर होगा उसके हैंड पे टैक्सेबल होगा वो, कंपनी को कोई टैक्स नहीं देना होगा उस केस में। ये इसमें डबल टैक्सेशन होता है कि सेम प्रॉफिट पे आपको 2 बार टैक्स देना होगा। जो पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप पे नहीं होता है उसमें आप अगर प्रॉफिट आपका कोई आता है पार्टनरशिप फर्म में उस पर प्रॉफिट पर आपने टैक्स दे दिया तो उसके बाद वो ओनर्स का प्रॉफिट है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना होता। लेकिन कंपनी के केस में आपको दोबारा उस पर टैक्स देना होता है अगर आपको विड्रॉ करने के लिए। आप सैलरी डाल सकते हैं जितनी भी प्राइवेट लिमिटेड केस में, लेकिन आपको डिविडेंड लेना है तो आपको तो उसमें टैक्स देना पड़ता है। Is there any charge for spice form also? स्पाइस फॉर्म का कोई चार्ज नहीं होता उसमें। एमओए एओए की कुछ स्टैम्प ड्यूटी जाती है अराउंड 400-500 दोनों के मिला के कुछ दिल्ली में। अगर 1 लाख की हम कैपिटल की कंपनी फॉर्म करते हैं तो वही उसमें चार्जेस होता है। बस नेम अप्रूवल के लिए वी हैव टू पे 1000 रुपीज। Yes, now dividend received by shareholder is not exempt. Shareholder has to pay tax. Sole proprietorship, capital expenditure, revenue expenditure, प्रोप्राइटरशिप में कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कोई लिमिट नहीं होती मिनिमम। जो आपका बिजनेस है जो भी एक्सपेंस है वो एक्चुअल रहता है उसमें कोई लिमिट का कोई कुछ नहीं है।
तो आगे चलते हैं, अब किसी की क्वेरी नहीं है तो। एक क्वेश्चन है, अगर आप लोग सोचिएगा किसी को इसके बारे में आइडिया है, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे, कि हम जो भी अकाउंटेंसी करते हैं अभी हम सभी, आपको बेसिक अकाउंटेंसी का सबका आइडिया होगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर हम जो भी फिक्स एसेट परचेज करते हैं उसको 8 ईयर्स 10 ईयर्स के लिए बुक करते हैं और उसको फिर फर्दर डेप्रिशिएट करते हैं। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब हम बुक करते हैं उसको सेम ईयर एक्सपेंस ऑफ कर देते हैं कंप्लीट। कैपिटल एक्सपेंडिचर को सेम ईयर क्यों नहीं एक्सपेंस ऑफ करते हैं? प्लीज रिप्लाई इफ एनीवन हैव आंसर। In case of service, GST turnover limit is 20 lakh. In case of goods, it is 40 lakh. एक जीएसटी का हमारे पास अलग से सेशन है, तो उसके लिए आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी उस केस में। अगर अकाउंट से रिलेटेड किसी का क्वेरी है तो पूछ सकते हैं आप। ओके, इसका कुछ का सही रिप्लाई आया है। इसका जो रीज़न होता है, ये हमारी अकाउंटिंग एजम्पशन होती है, कुछ जो बेसिक एजम्पशन विच यू हैव स्टडीड आई थिंक। ड्यू टू गोइंग कंसर्न एजम्पशन, we are booking capital expenditure fixed at over the period of its useful life। अगर कोई एसेट की लाइफ 10 ईयर्स है या 8 ईयर्स है या 15 ईयर्स है 60 ईयर्स है, हम उसको बुक करते हैं एज अ फिक्स एसेट और डेप्रिशिएट करते हैं उसको उतने ही सालों में। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कोई होता है, सपोज कोई भी प्रिंटिंग स्टेशनरी या सैलरी या कुछ भी एक्सपेंस है, तो हम उसको उसी साल में बुक कर देते हैं। ये हमारी कोई कंजम्पशन होती है कि जो भी बिजनेस रहेगा वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रन करेगा, इसलिए हम उसको ये एजम्पशन करते हैं कि बिजनेस हमारा अभी चलेगा, तो उसकी यूजफुल लाइफ में उसको डेप्रिशिएट करेंगे रेदर देन सेम ईयर। इफ भी हम अब कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं फॉर 1 ईयर, तो जो भी एसेट है 1 ईयर हम यूज करके उसको डिस्पोज ऑफ करना है, तो हम उस केस में कैपिटल एक्सपेंडिचर सेम ईयर में सब कुछ उसको कर सकते हैं। उस केस में एग्जाम्पशन फिर हमें अलग से डिस्क्लोजर मेंशन करना होगा भी, अब गोइंग कंसर्न एग्जाम्पशन नहीं है हमारी इस केस में। देन कंसिस्टेंसी एग्जाम्पशन, अगर कोई हम अकाउंटिंग पॉलिसी है लाइक डेप्रिसिएशन मेथड एसएलएम या डब्ल्यूडीवी। कंसिस्टेंसी एग्जाम्पशन यही होते हैं कि हम कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं तो उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं, कि एक साल जो हमने अडोप्ट कर ली है कोई भी डेप्रिसिएशन मेथड्स की या एस्टिमेट्स की, हम ये मेथड रहेगा हमारे लिए, तो वही मेथड हमें यूज़ करना होता है। अगर हम उसको चेंज कर सकते हैं, रेयर केसेस में चेंज करते हैं, तो उसके लिए हमें डिस्क्लोजर देना होता है कि इस ईयर हम ये एजम्पशन हम चेंज कर रहे हैं। एक्रूअल एजम्पशन ये होते हैं कि हम जो भी एक्सपेंसेस है रेवेन्यू है एक्रूअल बेसिस पे उसको बुक करते हैं। लाइक कोई सेल हुई है आपकी, इनवॉइस रेज हो गया है 31 मार्च को, आपका गुड्स डिलीवर हो गया है, लेकिन आपकी पेमेंट आई है 1 अप्रैल को, तो एक्रूअल बेसिस कंसेप्ट पे हम उसको 31 मार्च में ही बुक करेंगे, 1 अप्रैल को बुक नहीं करेंगे। कि उसकी पेमेंट जब मर्जी हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इसमें एक्रूअल बेसिस पे। अगर आप कैश बेसिस पे कर सकते हैं करते हैं, तो उस केस में जब पेमेंट आती है जब ही हम उसको सेल बुक करते हैं। मतलब जनरल अजम्पशन यही होती है कि जो हम फॉलो करते हैं, अगर इसके अलावा कुछ हम इसको चेंज करते हैं तो हमें डिस्क्लोजर देना होता है कि हम इसके अलावा कुछ और फॉलो कर रहे हैं। होप इट इज क्लियर टू एवरीवन।
यस, मैचिंग कंसेप्ट के लिए भी हम रेवेन्यू उसी ईयर में बुक करते हैं। मैचिंग कंसेप्ट मीन्स होता है कि जिस पीरियड का रेवेन्यू है उसी पीरियड का हम एक्सपेंसेस उसको मैच करने के लिए हम बेटर फाइनेंशियल रिजल्ट मिल सके, इसलिए उसको मैचिंग कंसेप्ट का प्रिंसिपल यही होता है। दुर्गेश झा का जो क्वेश्चन था। तो आगे चलते हैं हम। ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है कुछ जो मैंने इसमें डाले हैं, जस्ट इसको ब्रीफ कर देता हूँ मैं। कि जो आपकी बिजनेस एंटिटी होती है, लाइक आपकी प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी है, वो आपसे ओनर से सेपरेट होती है फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग। अगर आपकी पर्सनल बुक्स में आप कुछ भी करते हैं तो उसका बिजनेस बुक से कोई मतलब नहीं है। हम बिजनेस में ओनली बिजनेस की ट्रांजेक्शन बुक करते हैं, तो इट इट इज ऑल्सो अकाउंटिंग प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल मीन्स जो भी ट्रांजेक्शन मनी में मेजरेबल है। अगर आपका कोई स्टॉक थेफ्ट हो जाता है, अगर आपको उसका मेजर ही नहीं है कि कितने करोड़ का स्टॉक आपका लॉस हो गया है, तो हम उसको बुक नहीं कर सकते ट्रांजेक्शन को, जब तक आपकी उसकी मनी वैल्यू नहीं है किसी भी ट्रांजेक्शन की। मैचिंग प्रिंसिपल्स वही सेम अभी दुर्गेश का जो क्वेश्चन था कि रेवेन्यू, अगर अप्रैल की हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो अप्रैल पीरियड का रेवेन्यू और अप्रैल पीरियड का एक्सपेंस हमें मैच करना होगा, जब ही हम बेटर रिजल्ट मिल पाएंगे। अगर उसको नहीं करते हैं तो उसका रिजल्ट सही नहीं मिलेंगे, वो ऐसे नहीं मिलेंगे। अगर आपकी मंथली आपकी बिलिंग होती है किसी क्लाइंट से, अगर आपने 1 करोड़ रुपीज़ की मंथली बिल कर दिया और सैलरी आपकी सपोज 80 लाख रुपीज़ की है, सैलरी आपने 80 लाख रुपए की अप्रैल में ना बुक करके मई में आपने दोनों मंथ्स की बुक कर दी, तो कहीं भी आपको जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो सही नहीं आएगी, क्योंकि आपने मैचिंग नहीं किया एक्सपेंस और रेवेन्यू का। अप्रैल का एक्सपेंस रेवेन्यू सेम मंथ में होना चाहिए, मई का सेम मंथ में, और फॉर फाइनेंशियल ईयर तो होना ही चाहिए। ये कुछ अकाउंटिंग इक्वेशंस है जो बेसिक है, आपने स्टडी किया होगा सबने। असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। जो भी हमारी असेट्स होती है, फिक्स्ड असेट्स, स्टॉक, डेटर्स, कैश एंड बैंक बैलेंस, और कैपिटल, जो आपके कैपिटल है प्रोप्राइटरशिप की या पार्टनर्स की कैपिटल है, या कंपनीज के केस में शेयर कैपिटल है, प्लस आपकी जो लाइबिलिटीज हैं क्रेडिटर्स के लिए, या कोई आपकी जीएसटी पेबल है, या तो एसेट्स आपका इक्वल होता है कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। और जो आपकी इनकम आती है वो रेवेन्यूज हैं, जो भी आपकी टर्नओवर है माइनस उसमें से एक्सपेंसेस कर देते हैं तो आपकी इनकम आ जाती है। दिस इज अ P&L अकाउंट। इफ एनीवन हैव क्वेश्चन यू कैन आस्क। किसी को ये लगता है कि हमें ये बेसिक चीज़ हमसे स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि सभी स्टूडेंट्स को देखते हुए, क्योंकि हमारे पास हर लेवल के स्टूडेंट है, तो प्लीज़ बी पेशेंस, यू विल लर्न समथिंग डेफिनेटली। तो आगे चलते हैं। ये गोल्डन रूल्स है अकाउंटिंग के, जो एक बेस होता है, अगर आपको ये क्लियर है तो आप जर्नल एंट्रीज, कॉस्टिंग, बैलेंस शीट, P&L सब कुछ आप इजीली कर सकते हैं। ये बेसिक आपकी क्लियर नहीं होगा तो आप आगे भी नहीं कर पाएंगे। तो ये मस्ट है सबके लिए थोड़ा समझना। अगर किसी को आता है तो अच्छी बात है, जिसको नहीं आता वो समझ ले अच्छे से। हमारे 3 टाइप्स, जो भी हमारे लेजर्स होते हैं, अकाउंट्स होते हैं, उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स में आते हैं लाइक इंडिविजुअल्स फर्म्स, जो डेटर्स आपके डेटर्स क्रेडिटर्स जो होते हैं वो पर्सनल अकाउंट्स में आएंगे। लाइक कैपिटल जो होगी सोल प्रोप्राइटरशिप केस में, वो भी पर्सनल अकाउंट्स में आएगी आपकी। जो रियल अकाउंट्स हैं, ये रिलेटेड टू एसेट्स एंड लायबिलिटीज अदर देन पर्सन। पर्सनल अकाउंट्स के अलावा जो भी आपकी एसेट्स लायबिलिटीज है, कैश एंड बैंक, स्टॉक, एसेट्स,
या कोई भी और एसेट्स लायबिलिटीज हैं तो सब इसमें आएगी आपके रियल अकाउंट्स में। एंड नॉमिनल अकाउंट्स में आएगी कोई भी आपका इनकम, एक्सपेंसेस, लॉस, पीएनएल की जो आपकी आइटम होती है सभी इसमें नॉमिनल अकाउंट्स में आएंगी। तो इसका जो रूल होता है पर्सनल अकाउंट्स के अकाउंटिंग के लिए कि आपको जो रिसीवर है उसको डेबिट करना है और जो गिवर है आपको उसको क्रेडिट करना है। अगर आप कोई भी सेल की एंट्री बुक करते हैं उस केस में आप डेटर को डेबिट करते हैं, सेल को क्रेडिट करते हैं। दैट मीन्स कि जो डेटर है आपका वो रिसीवर हो गया है उस केस में। और जो सेल आएगी वो नॉमिनल अकाउंट्स में आती है तो क्रेडिट ऑल इनकम, तो ये सेल्स इनकम में है तो आपकी वो क्रेडिट हो जाती है उस केस में। क्योंकि रिसीवर वो इसलिए हो गया, डेटर्स आपको उससे आपको पेमेंट लेनी है और वो तो इसलिए आपका वो रिसीवर हो गया। और आप परचेज की कोई एंट्री बुक करते हैं तो परचेज को डेबिट करते हैं क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस इन नॉमिनल अकाउंट। एंड सप्लायर्स को क्रेडिट करते हैं क्योंकि वो क्रेडिट द गिवर एज पर पर्सनल अकाउंट। और रियल अकाउंट्स में होता है डेबिट व्हाट कम्स इन द बिजनेस। अगर कोई भी आप एसेट खरीदते हैं तो डेबिट होती है, कोई भी कैश एंड बैंक में आपका बैलेंस आता है तो डेबिट होता है। और आपकी लाइबिलिटीज पे ऑफ होती हैं तो डेबिट आता है। मतलब एसेट्स आपकी इंक्रीज होंगी तो डेबिट होगा, लाइबिलिटीज डिक्रीज होंगी तो डेबिट होंगी वो। ऐसे रिवर्स होता है, अगर एसेट्स आपकी, अगर मशीनरी आप सेल ऑफ करेंगे तो वो क्रेडिट होगी। कैश एंड बैंक से आपकी कोई पेमेंट जाएगी तो बैंक क्रेडिट होगा, कैश एंड बैंक। अगर आपकी कोई लाइबिलिटी इंक्रीज होती है, कुछ परचेज करते हैं तो आपका वो लाइबिलिटीज अकाउंट क्रेडिट हो जाता है अगर आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है। नॉमिनल अकाउंट्स में सभी आपके जो एक्सपेंसेस हैं, परचेज अकाउंट है, लाइक डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सभी आपके अकाउंट डेबिट्स होंगे। और जो भी आपकी इनकम होगी, सेल अकाउंट, इनडायरेक्ट इनकम, सभी आपके वो क्रेडिट होंगी। तो इस अकाउंटिंग रूल्स को हम एंट्री से समझ लेते हैं तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी। ये परचेज की एंट्री है आपकी। परचेज अकाउंट आप डेबिट करेंगे, वो इसलिए करेंगे क्योंकि वो नॉमिनल अकाउंट रहेगा आपका। जो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, जीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी आपके एसेट से लाइबिलिटी रहेंगी तो रियल अकाउंट हो गया आपका। क्योंकि जीएसटी पेबल और रिसीवेबल आपका एसेट लाइबिलिटीज का पार्ट है। तो इस केस में हमें इनपुट मिल रहा है तो बिजनेस में वट कम्स इन है तो रियल्स अकाउंट में आ जाएगा आपका वो, और डेबिट हो जाएंगे दोनों। अगर हम वेंडर से परचेज किया है तो वेंडर आपका क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट द गिवर लाइक पर्सनल अकाउंट। अगर सेम यही हम सेल की एंट्री करते हैं तो उसमें कस्टमर अकाउंट हमारा डेबिट हो जाता है, डेबिट द रिसीवर। और सेल अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा जो नॉमिनल अकाउंट में मेंशन है कि क्रेडिट ऑल इनकम। सीजीएसटी, एसजीएसटी हमारे क्रेडिट हो जाते हैं जो रियल अकाउंट में मेंशन है बट गोज आउट। इस केस में हमें जीएसटी पे करना होता है, पेबल हम मेंशन कर रहे हैं सेल के एंट्री में। और परचेज में हम जीएसटी इनपुट मेंशन करते हैं, इसलिए वो वहाँ पे डेबिट होता है, यहाँ पे क्रेडिट होता है। और हम पेमेंट की एंट्री करते हैं तो वेंडर अकाउंट को डेबिट करते हैं, डेबिट द रिसीवर। और बैंक को हम क्रेडिट करते हैं। 1 मिनट प्लस।
हाँ, तो हम पेमेंट एंट्री कर रहे थे, इसमें वेंडर अकाउंट हमारा डेबिट हो जाता है। ये पर्सनल अकाउंट है और ये डेबिट द रिसीवर रूल के हिसाब से। और बैंक हमारा क्रेडिट हो जाता है, जो रियल अकाउंट है कि बैंक से आपके पेमेंट जा रही है। और रिसिप्ट एंट्री में बैंक आपका डेबिट हो जाएगा क्योंकि आपके अकाउंट में पैसा आएगा, रियल अकाउंट बट कम्स इन। और वेंडर अकाउंट का आपका क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट द गिवर के रूल के हिसाब से। ऐसे ही हम कैश विड्रॉल करते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, तो उस केस में कैश आपका डेबिट हो जाता है क्योंकि कैश आपका इंक्रीज हो रहा है, और बैंक आपका क्रेडिट हो जाता है जो बैंक से आपका पैसा विड्रॉ हो रहा है। सेम रिवर्स एंट्री कैश डिपॉजिट के केस में हो जाती है आपकी, कि बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो जाता है बट कम्स इन द बिजनेस, एंड कैश आपका क्रेडिट हो जाता है जो आपका कैश जमा हो गया बिजनेस से। अगर इस केस में किसी की कोई क्वेरी है तो रेज कर सकता है। और एट द एंड भी हमारा क्वेरी सेशन है जिसमें कोई भी हम पूछ सकते हैं, हम उसको अनम्यूट करके डायरेक्ट क्वेश्चन रेज कर सकता है। अभी की भी किसी की क्वेरी है तो वो भी पूछ सकता है चैट के थ्रू। तो kindly brief- प्रभात जी, अपनी क्वेरी थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, क्या कहना चाह रहे हैं आप। हम आगे चलते हैं। ये क्रेडिट नोट की एंट्री है। क्रेडिट नोट मीन्स होता है हम हमारी सेल रिटर्न जो होती है, अगर हमने किसी को सेल की है और वो अपना गुड्स हमें रिटर्न कर देता है तो वो क्रेडिट नोट होता है। और इसको हम क्रेडिट नोट इसलिए कहते हैं क्योंकि हम कस्टमर अकाउंट को क्रेडिट करते हैं और डेबिट नोट में वेंडर अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या डेबिट नोट होता है, क्या क्रेडिट नोट होता है। क्रेडिट नोट में सेल्स की आपकी रिवर्स एंट्री हो जाती है, और डेबिट नोट में आपकी परचेज की, हमने परचेज की रिटर्न की है तो परचेज की आपकी रिवर्स एंट्री हो जाती है। बाकी सब चीज़ आपकी सेम रहेगी। और हम कोई भी अगर असेट परचेज करते हैं तो आपके बिजनेस में वो रियल अकाउंट है, तो आपकी जो बिजनेस में आई है तो वो डेबिट हो जाएगी, और वेंडर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट द गिवर। जो आपको उसको पेमेंट करनी है तो वो गिवर है। अगर हम कैपिटल ऐड करते हैं अपने प्रोप्राइटरशिप में तो आपका बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता है क्योंकि बैंक के आपके बिजनेस का जो अकाउंट है उसके अकाउंट में पैसा आया है, और जो आपकी कैपिटल क्रेडिट हो जाती है क्योंकि आपने पैसा दिया है पर्सनल अकाउंट के बिहाफ पे। क्रेडिट द गिवर, बिजनेस को आपको पे करना है। बिजनेस के केस में एक तरीके से लायबिलिटी है आपको पे करने की, इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। अगर डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो जाता है क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। एंड एसेट अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाता है, विच इज लाइक रियल अकाउंट विच इज वैल्यू उसकी एसेट्स की आपकी कम हो रही है, तो इसलिए वो क्रेडिट हो जाएगा आपका। अगर हम एक्सपेंस आप बुक करते हैं तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस के रूल के हिसाब से एक्सपेंस आपका डेबिट हो जाएगा, वेंडर आपका क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट द गिवर, आपने उसको पेमेंट करनी है। यहाँ तक कि किसी को क्वेरी है तो प्लीज आस्क, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। हेलो। आशीष जी, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है, बताइए।
बेसिकली अगर मैं ब्रीफ करूं सभी चीज़ों को, तो आप ये कहना चाह रहे हैं अगर कोई एसेट रिलेटेड अकाउंट है या फिर मेरा कोई एक्सपेंस रिलेटेड अकाउंट है, तो वो डेबिट करने से बढ़ेगा फर्स्ट थिंग, और हाँ हाँ क्रेडिट करने से कम होगा। हाँ। एंड असेट्स दूसरी, असेट्स आपकी इंक्रीज हो रही है तो डेबिट होगी, लाइबिलिटीज अगर इंक्रीज हो रही है तो आपकी वो क्रेडिट होगी। अगर मतलब डेबिट डेबिट जो करना है, डेबिट करने से जो चीज इंक्रीज होती है वो है एसेट्स एंड मेरे एक्सपेंसेस, यस यस। और क्रेडिट करने से जो इंक्रीज होती है वो होती है मेरी लाइबिलिटी एंड माय क्रेडिट साइड, मतलब ये इनकम इनकम, पार्ट। यस यस। यस। तो एक ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। अगर एक पर्सन है मिस्टर ए, अगर मशीनरी वो सोल्व कर देता है अपनी, जिसकी कॉस्ट 2 लाख रुपीज थी, और 1,50,000 में उसने सोल्व कर दी टू मिस्टर बी, एंड रिसीव रुपीज 1,50,000 इन द बैंक, what would be the entries in this case? You can mention in the chat. डेबिट नोट क्रेडिट नोट के लिए क्वेरी है तो मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्रेडिट नोट वो इशू करता है जिसने सेल किया है गुड्स, और डेबिट नोट वो इशू करता है जिसने परचेज किया है। हमने जो गुड्स हमने सेल किया है, अगर उसकी रिटर्न कोई हमें पर्सन गुड्स हमें रिटर्न कर देता है, तो जो सेल रिटर्न होती है उसके लिए हमें क्रेडिट नोट इशू करना होता है कस्टमर को, कि हमने आपको आपका जो अकाउंट है उसको हम क्रेडिट कर रहे हैं। जो आपने हमें सपोज 1 लाख रुपीज देने थे, जो आपका डेबिट बैलेंस था 1 लाख रुपीज का, हमने उसके उसके अगेंस्ट हमने क्रेडिट नोट इशू कर दिया सपोज 50,000 का, तो आपका बैलेंस 50,000 रह गया है जो आपने देना है। जो 50,000 का आपने गुड्स रिटर्न कर दिए तो हमने आपका बैलेंस क्रेडिट कर दिया है। क्योंकि कस्टमर का बैलेंस डेबिट होता है ऑलवेज, तो हम अगर वो हम उसको बैलेंस को उसको क्रेडिट करते हैं तो उसका बैलेंस कम हो जाता है। सेल रिटर्न के केस में, सेल में हम उसको डेबिट करते हैं और सेल रिटर्न में उसको क्रेडिट कर देते हैं, तो रिवर्स हो जाता है आपका बैलेंस। ऐसे डेबिट नोट के केस में हम वेंडर से किसी से कोई परचेज करते हैं तो उसको हम क्रेडिट करते हैं क्योंकि हमें पेमेंट करनी है, और हम जब उसको डेबिट नोट इशू कर रहे हैं उसका हमने कुछ गुड्स रिटर्न रिवर्स कर दिया है, रिटर्न कर दिया है उसको कुछ गुड्स, तो उस केस में हम उसको वेंडर को डेबिट कर देते हैं। क्योंकि हमें सपोज पहले 1 लाख पे करने थे, हमने क्रेडिट बैलेंस था जो उसका 50,000, हमने उसको डेबिट कर दिए तो बैलेंस हमें 50,000 ही पे करना है। तो ये मतलब होता है डेबिट नोट क्रेडिट नोट का। जो एक एक बंदा, कोई भी एक क्रेडिट नोट सेलर के लिए क्रेडिट नोट होगा, बायर के लिए डेबिट डेबिट नोट होगा। वो एक पर्सन क्रेडिट नोट इशू करेगा, एक पर्सन डेबिट नोट इशू करेगा, सेम डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट, सेम ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट। आई थिंक अब सब क्लियर हो गया होगा सबको। इसका आंसर मेंशन कर सकते हैं अगर इसको आइडिया है तो। बेसिकली इसके अंदर 2 लाख रुपए की मेरी मशीनरी है, जो जिसकी बुक वैल्यू 2 लाख रुपीज है, और मैंने उसको 1.5 लाख रुपए में सेल कर दिया है। हम्म। तो 1.5 लाख रुपए मेरे पास बैंक में आए हैं। बैंक में आए हैं मतलब मेरा बैंक, जो मेरा एसिट है, एसिट आया है मेरे पास, तो बैंक मेरा डेबिट होगा। मतलब एक एसिड बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। तो यहाँ पर 1.5 लाख रुपए से मेरे को अपना एसिड बढ़ाना होगा। हम्म। और साथ ही में मेरी जो मशीनरी, जो 2 लाख रुपए की जिसकी कॉस्ट थी, जो मेरे पास 2 लाख रुपए की थी, वो मैंने बेच दी है। तो मुझे मेरे को अपना एसिड 2 लाख रुपए से हटाना है बुक से। तो वो मुझे एफ ए क्रेडिट करना होगा अपना 2 लाख रुपए से। हाँ हाँ तो आप चेक करेंगे तो क्या होगा कि मेरा 50,000 रुपए से मेरा लॉस हो गया है बेसिकली। हाँ, लॉस आपका बुक हो जाएगा। लॉस होगा। लॉस क्या होता है, मेरा खर्चा होता है। 2 लाख रुपए की मशीनरी मैंने 1.5 लाख रुपए में बेचती, तो मेरा खर्चा हुआ 50,000 रुपए, मेरा खर्चा हुआ। खर्चा अगर मेरे को बढ़ाना है तो क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। डेबिट मतलब लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, डेबिट।
कुछ के रिप्लाईज आए हैं, सही आए हैं काफ़ी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या इसका आंसर रहेगा। हम इसकी दो एंट्री करेंगे। मिस्टर बी अकाउंट डेबिट, कि हमने उसको सेल किया है, उससे हमें 1,50,000 लेने हैं। और हमारा 50,000 का लॉस हुआ है, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो हम इसको डेबिट करेंगे। और 2 लाख मशीनरी हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि मशीनरी हमने सेल ऑफ कर दी है, एसेट हमारी रिड्यूस हो गई है। और फिर हम बैंक डेबिट करेंगे, क्योंकि बैंक में हमारे पैसा आया है और मिस्टर बी से हमें पैसा लेना था, जो पैसा आ गया, तो मिस्टर बी को हम क्रेडिट कर देंगे। मिस्टर बी का अकाउंट जीरो हो जाएगा, उससे अब कोई बैलेंस नहीं रहेगा। ये मिस्टर बी आपका पर्सनल अकाउंट है। ये लॉस ऑन सेल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस टू मशीनरी, रियल अकाउंट, जो हमारा बिजनेस आउट हो गई है। बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, क्योंकि डेबिट वर्ड कम्स इन, आपके बैंक में पैसा आया है। टू मिस्टर बी क्रेडिट, क्रेडिट द गिवर। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है। दिस इज द क्वेश्चन एंड आंसर ऑल्सो। अगर मिस्टर ए है, विड्रॉ करता है 1 लाख रुपीज फ्रॉम हिज बिजनेस बैंक अकाउंट फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस एंड स्पेंड 80,000 एंड कीप बैलेंस विद हिमसेल्फ फॉर फ्यूचर पर्सनल यूज। तो इस केस में 1 लाख उसने बिजनेस से विड्रॉ किया है, जो उसकी ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा, जो पर्सनल अकाउंट में आता है। ड्राइंग अकाउंट इज लाइक कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिट एंड ड्राइंग अकाउंट इज डेबिट। और बैंक आपका क्रेडिट हो जाएगा 1 लाख रुपीज से, क्योंकि बैंक से आपका पैसा विड्रॉ हो गया, बिजनेस से विड्रॉ हो गया, और आपके ड्राइंग्स में बैलेंस बढ़ गया है, तो ड्राइंग्स आपका डेबिट हो जाएगा। और उसने कहाँ उसको यूज किया है, तो हमें उसको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपका बिजनेस एक्सपेंस नहीं है। हमें 1 लाख ड्राइंग्स बुक करनी है बस, और इसके अलावा कुछ नहीं करना है। और ये जो ड्राइंग है आपका पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, और बैंक आपका रियल अकाउंट, जो बट गोज आउट ऑफ द बिजनेस। उसी की हम, जो एंट्रीज के बाद जो प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस होता है एंट्रीज का, पोस्टिंग होती है लेजर्स में। जो भी आपके लेजर्स हैं, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, वेंडर अकाउंट, कस्टमर अकाउंट, असेट अकाउंट, बैंक, कैश, सबके लेजर्स बनते हैं और उसकी पोस्टिंग होती है। ये हमने एक सेल एंट्री की पोस्टिंग करी है, जिस केस में हमने, अगर हमने सपोज उसको 1,50,000 की सेल करी थी, जो हम उसको क्रेडिट करेंगे। सेल क्रेडिट होती है, इसलिए यहाँ पे कस्टमर का मेंशन करके हम उसको क्रेडिट में शो करेंगे। और जो सेल रिटर्न होती है वो डेबिट होती है। जिस अकाउंट का आपका लेजर है, अगर वो लेजर आपका क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में पोस्टिंग जाती है। अगर वो लेजर डेबिट हो रहा है, तो उसकी पोस्टिंग डेबिट साइड में मेंशन होती है। अगर इसमें आपका सेल करी आपने, तो सेल हम इनकम को क्रेडिट करते हैं, तो 1,50,000 से मैंने सेल बुक कर दी है यहाँ पे। और कस्टमर में, और हमने जब रिटर्न करी है सेल रिटर्न, तो 30,000 की सेल रिटर्न बुक कर दी है। तो बैलेंस आपका 1,20,000 बचता है, जो नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। मतलब इसका सिंपल पोस्टिंग का यही रूल है, जो लेजर की आप पोस्टिंग कर रहे हैं, उस लेजर का अगर वो क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में उसकी पोस्टिंग जाती है। डेबिट हो रहा है, तो उसके डेबिट साइड में पोस्टिंग जाती है। तो हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं इस केस में। अगर कोई एसेट का हम लेजर बनाते हैं, एसेट हमने परचेज करी है 3 लाख रुपीज की, तो एसेट हम डेबिट करते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे एसेट डेबिट करी है 3 लाख रुपीज से टू वेंडर। वेंडर यहाँ पे वेंडर का नाम आ जाएगा। और मार्च में डेप्रिसिएशन बुक करते हैं। डेप्रिसिएशन में आपकी एसेट क्रेडिट होती है, तो हमने ये एंट्री आपकी क्रेडिट साइड में मेंशन हो जाएगी 30,000 से। और जो बैलेंस रहेगा 270 का,
वो आपका नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इसका सिंपल रूल यही है पोस्टिंग का, जिसका अगर क्रेडिट साइड में है तो क्रेडिट में पोस्ट करना है उसका बैलेंस, डेबिट साइड में है डेबिट में पोस्ट करना है। ये हम अकाउंटिंग सिस्टम आपको एंड टू एंड बता रहे हैं, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। जो अगर पहले जो मैनुअल मेंटेन होता था उसका पोस्ट सिस्टम यही होता है, आजकल तो सॉफ्टवेयर से सब मेंटेन हो जाता है। आपको पोस्टिंग कुछ नहीं करनी है, ना कोई ट्रायल बैलेंस बनाना है, ना कोई बैलेंस शीट पीएनएल, सब ऑटोमेटिक बनता है। लेकिन आपको ये अंडरस्टैंडिंग होगी तो बेटर आप समझ पाएंगे कि कैसे सिस्टम रन करता है, कैसे एंट्रीज पोस्ट होती हैं, कैसे आपका ट्रायल बैलेंस में मेंशन होती है। अगर यही एंट्रीज हमारी पोस्ट होती है लेजर बैलेंस, लेजर जो हमने बनाए सभी इसके सेपरेट सेपरेट, वो जो लेजर का बैलेंस होगा, ये वाला जस्ट सपोज इसमें 2,70,000 का क्लोजिंग बैलेंस है, ये बैलेंस आ रहा है आपका डेबिट बैलेंस। ये डेबिट बैलेंस आपके यहाँ ट्रायल बैलेंस में एसेट में आ जाएगा 2,70,000। ऐसे ही अगर यहाँ पे सेल्स में आपका यहाँ क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 1,20,000, तो आपकी ड्यूरिंग द ईयर 1,20,000 की सेल हुई है, जो आपके ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर हो जाती है 1,20,000 आपका यहाँ पे मेंशन हो जाता है। ये हमने सैंपल पोस्टिंग दिखाई थी आपको कंसेप्ट समझाने के लिए। तो ऐसे सभी लेजर से उठ के बैलेंस आ जाता है। अगर कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है नेट, वो 8 लाख यहाँ पे आपका क्रेडिट में ट्रांसफर हो जाएगा। अनसिक्योर्ड लोन का बैलेंस ट्रांसफर हो गया है 1 लाख रुपीज़। वेंडर अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर हो गया है 3 लाख रुपीज़। आपका ओपनिंग स्टॉक का कुछ 4 लाख रुपीज़ इधर मेंशन हो गया है। एसेट्स अकाउंट्स आपका डेबिट बैलेंस आ गया 4,50,000 का। कस्टमर अकाउंट आपका ट्रांसफर हो गया 4 लाख रुपीज़ से। ऐसे ही सभी बैलेंस आपके ट्रांसफर हो गए हैं। और कभी भी किसी को अगर क्लियर हो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में क्यों नहीं आता है, अगर कोई आंसर कर सकता है इस क्वेश्चन का। अगर किसी के पास आंसर है क्लोजिंग स्टॉक कभी भी ट्रायल बैलेंस में क्यों नहीं आता है, तो प्लीज रिप्लाई। चलो मैं बता देता हूँ स्टॉक का, क्योंकि कोई लेजर नहीं बनता है उसमें, क्योंकि क्वांटिटी हम मेंटेन नहीं करते हैं ना। उस स्टॉक का कोई अकाउंटिंग लेजर बनता है, वो परचेज एंड सेल से इफेक्ट होता है, इसलिए कोई क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस ट्रांसफर नहीं होता है इसमें। ट्रायल बैलेंस से आपके ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपके ट्रांसफर हो गए हैं बैलेंसेस। सेल्स आपकी 40 लाख रुपीज़ इधर आ गई है। ओपनिंग स्टॉक आ गया 4 लाख रुपीज़ का। क्लोजिंग स्टॉक मैंने 6 लाख रुपीज़ लिया है। अगर इसमें हम 6 लाख 8 लाख कुछ भी करते हैं तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बैलेंस शीट आपकी मैच हो जाएगी, क्योंकि वो पीएनएल और बैलेंस शीट दोनों में इफेक्ट करेगा उसका। परचेजेज आ गई आपकी 30 लाख रुपीज़ से। डायरेक्ट एक्सपेंस आ गया 1 लाख रुपीज़ से। जैसे आप यहाँ से देखेंगे तो सेल आपका पीएनएल में ट्रांसफर हो जाएगा क्रेडिट साइड में। परचेज आपका डेबिट साइड में हो जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंस आपका डेबिट साइड में आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में ही। ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा 4 लाख रुपीज़ से। क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 6 लाख से, तो आपका ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा 11 लाख रुपीज़ का। फिर हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है यहाँ पे 7 लाख रुपीज़ के, जिसको लेस करने के बाद हमारा नेट प्रॉफिट 4 लाख रुपीज़ से आ जाता है। और उसको हम बैलेंस शीट में पोस्ट करते हैं। कैपिटल आपकी आ जाती है वहाँ से 8 लाख रुपीज़। अनसिक्योर्ड लोन 1 लाख रुपीज़ आ गया है। वेंडर अकाउंट 3 लाख रुपीज़। ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा हमारा। क्लोजिंग स्टॉक 6 लाख रुपीज़ आ जाएगा। डेबिट साइड में एसेट्स आ जाएगा 450।
कस्टमर अकाउंट का बैलेंस आ जाएगा आपका 4 लाख रुपीज, कैश एंड बैंक बैलेंस आ जाएगा 1,50,000, और आपका जो प्रॉफिट आ रहा था P&L से 4 लाख रुपीज, वो आपका रिजर्व सरप्लस में ट्रांसफर हो जाएगा, तो आपकी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। ये हमने एक सिंपल सा एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करी है अकाउंटिंग कंसेप्ट। अभी हम एक 5 मिनट्स का ब्रेक रखते हैं, तो 5 मिनट्स बाद फिर स्टार्ट करते हैं। इन बिटवीन अगर किसी की क्वेरीज है तो प्लीज राइट इट आउट, आई विल रिप्लाई टू दैट।
अगर किसी की स्मॉल प्रोसेस में कोई क्वेरी है तो पूछ सकता है अभी। यस प्रीति, यू कैन आस्क क्वेश्चन। हेलो प्रीति उपाध्याय। दोबारा एक बार इसका फ्लो समझा देता हूँ आपको। जैसे आपकी जनरल एंट्रीज होती हैं, जनरल एंट्रीज की जो भी उसका डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है उस लेजर का, एंट्री सारी आपकी लेजर में पोस्ट हो जाती है। तो जो लेजर का आपका बैलेंस आता है आपका डेबिट या क्रेडिट, वो बैलेंस आपका ट्रायल बैलेंस में पोस्ट हो जाता है। और ट्रायल बैलेंस से आपकी जो पी&एल आइटम है वो पी&एल में जाती हैं आपकी, और जो बैलेंस शीट आइटम है वो बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाती है। अगर ट्रायल बैलेंस आपका बैलेंस मैच है तो बैलेंस शीट डेफिनेटली मैच हो जाएगी। तो यही सब चीज़ मैं आपको अभी टैली में भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि टैली में कैसे ये सब चीज़ रन करती है। ये टैली है हमारा। इसमें आपको अगर कोई भी अकाउंटिंग लेजर क्रिएट Tally is करना not visible, I think so. है तो विजिबल। नाउ Yes. इट इज विजिबल। Now it is visible. Yes. ओके, अब यहाँ से अगर किसी ने कोई भी अकाउंटिंग लेजर आपने क्रिएट करना है, मशीनरी का, डेटर्स का, क्रेडिटर्स का, तो आपको अकाउंटिंग इन्फो में जाके यहाँ पे लेजर्स में क्रिएट होता है। यहाँ पे कोई भी लेजर आप क्रिएट कर सकते हैं। सपोज फिक्स्ड असेट्स, वो कैटेगरी में फॉल करेगा आपका, फिक्स्ड असेट के अंदर ही फॉल करेगा। इन्वेंट्री हमको नहीं चाहिए, यहाँ पे जीएसटी पे हम एप्लीकेबल कर सकते हैं। और जीएसटी की सेटिंग में हम यहाँ पे डाल सकते हैं कि क्या उसका डिस्क्रिप्शन है, एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन कौन सी एसेट है वो, या उसका एचएसएन कोड अभी मैं ऐसे ही डाल देता हूँ। और उसकी टैक्सेबिलिटी जो होगी, अगर एग्जाम्प्ट है या रिलेटेड है या टैक्सेबल है, तो टैक्सेबल हम यहाँ डाल सकते हैं। उस पर रेट क्या होगा, सपोज 18% रेट है तो 18% हम यहाँ डाल के, ये सेटिंग इसलिए ज़रूरी होती है अगर आपको जीएसटी रिटर्न्स टैली से जनरेट करनी है, तो ये सेटिंग आपको करनी पड़ेगी, तो भी आप जीएसटी रिटर्न्स में जनरेट कर पाएंगे टैली से।
तो इसकी एप्लीकेबल डेट आ जाती है कि कब से आपको अप्लीकेबल करना है इस गुड्स। अगर कोई ओपनिंग बैलेंस है तो आप डाल सकते हैं। ऐसे ही आप कोई भी एक्सपेंस का भी क्रिएट कर सकते हैं। स्टेशनरी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस में चला जाएगा। इन्वेंट्रीज आपको अगर एप्लीकेबल करनी है तो इन्वेंट्री यहाँ यस कर सकते हैं। जीएसटी एप्लीकेबल, जीएसटी की डिटेल यहाँ डाल सकते हैं। स्पेसिफिकली आपका ये एग्जाम टैक्सेबल रिलेटेड जो भी है आप उसको यहाँ पे डाल सकते हैं, और 12% सपोज रेट है तो ऑप्शन मेंशन कर सकते हैं। ये भी गुड्स है। ऐसे ही आपका लेजर सभी क्रिएट हो जाते हैं। अगर आप परचेज सेल क्रिएट करते हैं तो उसमें डिफरेंट रहता है थोड़ा सा। अगर सपोज परचेज अकाउंट हम इसके अंदर ऑलरेडी है तो मैं आपको वो डिस्प्ले कर देता हूँ कि क्या है उसके अंदर। यहाँ पे इन्वेंट्री आपको अप्लाई करनी है तो परचेज में यस कर देते हैं यहाँ पे। और इसके अंदर हम नॉट एप्लीकेबल करते हैं क्योंकि अब इन्वेंट्री हम अप्लाई किया हुआ है तो आपको स्पेसिफिक आइटम क्रिएट करनी होती है, और आइटम के अंदर जीएसटी की सेटिंग करनी होती है कि हम परचेज एक लेजर में नहीं कर सकते क्योंकि उसमें डिफरेंट आइटम्स होंगी और सब पे डिफरेंट एचएस एंड डिफरेंट रेट्स होगा। तो आपको आइटम्स में करना पड़ेगा। अगर परचेज में भी डाल देंगे तो वो उसमें एरर शो करेगा फिर आपको एंट्री के टाइम पे। तो ऐसी कोई भी ग्रुप्स भी क्रिएट कर सकते हैं। सपोज आपने एक प्लांट एंड मशीनरी का ग्रुप करते हैं, इसके अंदर जो भी आपकी प्लांट एंड मशीनरी है अलग अलग टाइप की वो हम इसके अंदर फिर डाल देंगे कि आपकी ग्रुपिंग हो जाती है। कि अगर क्रेडिटर्स के अंदर ग्रुपिंग का यूज होता है मेनली कि आपके रॉ मटेरियल के क्रेडिटर्स कौन से हैं, सर्विसेज के क्रेडिटर्स कौन से हैं, या डेटर्स में फॉरेन डेटर्स कौन से हैं या इंडियन डेटर्स कौन से हैं, तो उस केस में ग्रुपिंग का यूज होता है जनरली। इस सब लेजर की तरह नहीं करना है हमने, इसमें कोई जीएसटी सेटिंग की जरूरत नहीं है। ऐसी जैसे कोई आइटम आपने बनानी होती है, कोई ऑलरेडी बनी मैं वो आपको शो कर देता हूँ। जैसे इलेक्ट्रॉनिक चॉक्स में बनी हुई है तो हम इसमें यहाँ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट मेंशन कर देते हैं कि पीसीस में है या केजीज में है या नंबर्स में है। और जीएसटी हम एप्लीकेबल कर देते हैं उसमें। रेट यहाँ पे डाल देते हैं इलेक्ट्रॉनिक चौक, उसका एचएसएन की कैलकुलेशन किस वैल्यू पे होगी, टैक्सेबल है और रेट क्या है। तो उसमें अगर स्टॉक है तो ओपनिंग वो भी डाल सकते हैं। ये आपको अगर कुछ भी लेजर्स इन्वेंट्री में आइटम ग्रुप क्रिएशन आपका यहाँ मास्टर्स के कैटेगरी के अंदर होता है। अगर आपको एंट्रीज करनी है तो आपकी एंट्रीज यहाँ काउंटिंग वाउचर से होती है। यहाँ पे सपोज आपका एक शॉर्टकट, अगर हम सपोज पहले एक सेल की एंट्री करते हैं, सेल के लिए आपको F8 डालना होगा। F2 से आप डेट डाल सकते हैं, कोई भी डेट डालना चाहते हैं।
और हम पार्टी सेलेक्ट कर लेंगे, सपोज ये हमारी पार्टी है इसकी, और यहाँ आइटम डाल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक चॉक, क्वांटिटी सपोज 400 पीसीस हमने दे दी उसको 40 रुपीज़ के हिसाब से, 60,000 का आपका बिल रेज हो गया। ये पार्टीज की आपकी जीएसटी की डिटेल्स आ गई हैं जो मास्टर में डली हुई थी। इसका मास्टर भी मैं शो कर देता हूँ आपको कि किसी भी मास्टर पार्टी का मास्टर आपने क्रिएट करना है तो उसमें ये स्टेट एंड जीएसटी नंबर आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो आप यहाँ से ऑल्टर करके जा सकते हैं कि रेगुलर है, कंपोजिशन है, और डिटेल्स में आपको जीएसटी कोर्स में आपको समझ में आ जाएगा कि क्या मतलब होता है इनका रेगुलर का, कंपोजिशन का, कि ई कॉमर्स ऑपरेटर है या फिर उसका पार्टी टाइप और जीएसटी नंबर। ये सब आपको डिटेल्स मैंडेटरी है कि जब भी आप जीएसटी रिटर्न जनरेट कर सकते हैं पहले से। हमने आपको पार्टी को डेबिट कर दिया है क्योंकि कस्टमर आपका डेबिट होता है सेल्स में। फिर यहाँ सेल अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे, इसकी जरूरत नहीं है। इन्वेंट्री हमने सेल में डालनी होती है, किसी और लेजर में नहीं डालनी होती है। जैसे आपकी सेल्स की एंट्री पोस्ट हो जाती है। ऐसी आप कोई परचेज की है सपोज एंट्री करते हैं तो ये हमारी परचेज की पार्टी हो गई है सपोज, इसमें हमने डाल दिया 3 लाख रुपीज़ की परचेज, और परचेज अमाउंट हमने डेबिट कर दिया है। ये हमारी ऐसे परचेज की एंट्री बुक हो जाती है, परचेज आपका डेबिट हो जाता है, पार्टी क्रेडिट हो जाती है। ऐसी सपोज आपने कोई कॉन्ट्रा एंट्री करनी है, कॉन्ट्रा में कैश क्रेडिट करते हैं तो आपका कैश डिपॉजिट की एंट्री होगी, नेगेटिव कैश का मैसेज आ रहा है। तो इसमें एक बैंक का लेजर हमें क्रिएट करना पड़ेगा, बैंक का लेजर नहीं है इसके अंदर। यहाँ पे सब डिटेल मेंशन कर सकते हैं आप बैंक की भी। अगर चेकबुक आपने प्रिंट करनी है तो यहाँ पे चेकबुक की भी सेटिंग हो जाती है आपकी, कि चेक्स आप टैली से प्रिंट कर सकते हैं।
यहाँ पे कैश डिपॉजिट की एंट्री कर सकते हैं, जैसे कैश आपका 40,000 क्रेडिट हो गया और बैंक आपका डेबिट हो जाएगा। इसके डिनोमिनेशन यहाँ पे डाल सकते हैं अगर डालना चाहते हैं तो। अगर आप किसी कस्टमर से अगर पैसा लेते हैं तो उसकी रिसिप्ट की एंट्री होगी। और ये हमारा कस्टमर है, इससे आप यहाँ पे इसको कस्टमर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा आपका और आपका बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और आपने सेल की एंट्री करनी है, सेल की हो गई आपकी, परचेज की भी हो गई है, जनरल की एंट्री मैं बता देता हूँ। फिक्स सेट आपने कोई परचेज करनी है तो जनरल में फॉल करेगा। 1 लाख रुपीज़ यहाँ फिक्स सेट डाल सकते हैं और आपकी पार्टी का नाम आ जाएगा, तो ये आपकी पार्टी है। तो फिक्स अकाउंट आपका डेबिट हो गया है और जन पार्टी आपकी क्रिएट हो गई है। अगर डेप्रिसिएशन की आप एंट्री करते हैं यहाँ से होल्ड सी करके क्रिएट कर सकते हैं डेप्रिसिएशन का लेजर। इस पर कोई जीएसटी आपका एप्लीकेबल होगा नहीं। डेप्रिसिएशन आपका सपोज 3,000 डेप्रिसिएशन हो गया है फिक्स सेट के अंदर, तो ये डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपका, असेट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इस टाइप में सभी आपकी एक एंट्री अकाउंटिंग एंट्रीज हो जाती है। अगर आपने किसी पार्टी का लेजर देना है तो डिस्प्ले में जाके आप यहाँ पे लेजर देख सकते हैं। फुल टैप टू से पीरियड चेंज करके ये आपका पूरा लेजर आ जाएगा कि आपने इसी पार्टी से क्या क्या परचेज करी है। जो आपको मैनुअल अकाउंट में पोस्टिंग करनी होती है ऑटोमेटिकली आपकी पोस्टिंग हो जाती है हर स्पेसिफाइड लेजर्स में। ऐसे ही आपका सेल्स का भी लेजर आ जाता है, जो आपकी पोस्टिंग हो गई है सारी। ये आपकी कैश एंड बैंक बुक होती है, इसमें कैश की जो ट्रांजेक्शन होगी वो आपकी यहाँ शो हो जाएगी, जो बैंक की ट्रांजेक्शन होगी वो आपको यहाँ पे आ जाएगी। सर टैली से रिलेटेड अब अभी तक किसी की क्वेरी है तो वो पूछ सकते हैं अभी।
मैं आपको एक जीएसटी रिटर्न जनरेट करना बता देता हूँ, जो हम स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में जीएसटी के अंदर जाके जनरेट कर सकते हैं। सपोज ये आपकी GSTR 1 है, तो इसमें आपकी जो भी एंट्रीज हो यहाँ शो करेगी। टोटल नंबर ऑफ वाउचर्स 19 है, उसमें जो रिटर्न्स में आ रहे हैं 13 और नॉट रेलिवेंट फॉर रिटर्न और 6 वाउचर्स हैं। जो आपके GSTR 1 में हमारी सभी सेल्स आती हैं, जो सेल्स से रिलेटेड नहीं होंगे वो आपके परचेज एंड जर्नल्स के वो नॉट रेलिवेंट आ जाएंगे। और डिटेल्स में आपको जीएसटी कोर्स में समझ में आ जाएगा, मैं आपको जस्ट जीएसटी रिटर्न जनरेट करना बता रहा हूँ कि आपकी अगर कोई एरर होगी तो यहाँ पे इनकम्प्लीट मिसमैच शो कर देगा, तो उसको आप फिर रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी B2B सभी एंट्रीज आ रही हैं कि क्या क्या हमने एंट्री करी है जीएसटी वाइज। B2C भी आ रही है कि स्टेट में क्या एंट्री करी हुई है, और ये आपकी डॉक्यूमेंट समरी भी आ रही है। तो उसको आप यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं GSTR 1, और एक यहाँ से GS1 फाइल भी जनरेट कर सकते हैं जिसको अपलोड कर सकते हैं। ऐसे ही आपकी GSTR 3 भी है। इसमें भी 19 वाउचर्स हैं, तो नोट एलिमेंट इसमें कोई नहीं, क्योंकि इसमें परचेज सेल्स सभी आएंगी आपकी। सेल्स आपकी 388 हो गई, तो सभी डिटेल्स आ गई सेल्स की। और उसमें से आपकी अनरजिस्टर्ड की सेल्स कितनी है वो यहाँ आपकी अलग से ब्रेकअप आ गया उसका। और आपका ITC कितना है वो यहाँ पे आपकी परचेज की डिटेल्स आ जाती हैं कि जो जो आपकी एंट्रीज परचेज की हो रखी है। यहाँ पे आप इसको ऐसे ही जनरेट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट रिटर्न JSON फाइल, एक्सेल फाइल, कोई भी आप एक्सपोर्ट करके उसको JSON फाइल डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं टैली में। अब किसी की कोई स्पेसिफिक क्वेरी है आज के टॉपिक को रिलेटेड पूछ सकता है वो। तो अब आगे बढ़ सकते हैं अगर किसी की क्वेरी नहीं है तो।
Now we can start bank reconciliation statement. बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की नीड क्यों आती है, कि हमें क्यों बनानी पड़ती है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट? उसके रीजंस ये हैं: ड्यू टू टाइमिंग्स। अगर आपने कोई चेक इशू कर दिया है और वो बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ है, तो वो रीज़न होता है। क्योंकि आपने इशू कभी और किया है और प्रेजेंट वो बाद में होता है, तो उसके जो डेज का डिफरेंस होता है वो उस रीज़न से आपको बीआरएस बनाना पड़ता है। एक, जो किसी कस्टमर ने चेक डिपॉजिट किया है लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ है अभी, तो वो भी रीज़न रहता है। अगर 31 मार्च में आपने चेक डिपॉजिट किया और वो क्लियर हुआ 1 अप्रैल में, तो वो आपका बीआरएस का पार्ट रहेगी एंट्री। और ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड बाय बैंक, जो बैंक इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस चार्ज करता है आपसे, और किसी कस्टमर ने सपोज आपका डायरेक्ट डिपॉजिट करा दिया आपके अकाउंट में जो आपको उसकी जानकारी नहीं थी, तो वो भी आपका बीआरएस का पार्ट रहेगा। अगर आपकी कोई मिस्टेक्स है बैंक बुक में या बैंक स्टेटमेंट में, तो वो भी आपका बीआरएस से क्लियर हो जाता है और बीआरएस का पार्ट रहता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। सपोज हमारी बैंक बुक में, जो हम अपनी बिजनेस की बुक मेंटेन करते हैं, उसमें बैलेंस है 1,50,000 का, और हमने अगर कोई चेक इशू किया है 12,500 का, जो अभी प्रेजेंट नहीं हुआ है। हम 31 मार्च को बीआरएस बना रहे हैं। अगर 31 मार्च या 28 मार्च, मार्च के एंड में हमने कोई चेक इशू किया है जिसने आगे प्रेजेंट नहीं किया, जो हमारी बैंक स्टेटमेंट नहीं आएगा लेकिन हमारी बुक्स में आ जाएगा वो, तो हम बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस को और हम अपने बुक्स के बैलेंस को अगर उसको मैच करेंगे, तो वो डिफरेंस शो करेगा कि हमने अब उसको डेबिट की एंट्री कर दी है बैंक में अपने बुक्स में, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में नहीं किया है क्योंकि वो चेक क्लियर नहीं हुआ अभी। तो हमें बैंक स्टेटमेंट में, बैंक बीआरएस में उसको लेना होगा। अगर कोई बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया है या कोई बैंक चार्जेस चार्ज कर दिए हैं, तो वो भी इसी में रहेगा। इसमें हमने इंटरेस्ट बैंक ने चार्ज किया है 2,500, जो हम उसको ऐड कर रहे हैं क्योंकि हमने अपनी बुक्स में नहीं लिया हुआ, तो हम इंटरेस्ट उसको लेंगे तो आपके बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। और बैंक चार्जेस आपके बैंक ने चार्ज किए हैं जो आपने नहीं लिए हुए हैं, हम उसको अपनी बुक्स में लेंगे तो आपके बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा। और हम आपने कोई चेक डिपॉजिट किया है, हमने अपनी बुक्स में उसको रिसीव कर लिया है चेक को, लेकिन अभी बैंक में क्लियर नहीं हुआ है 20,000 रुपीज़ का, तो वो भी आपका बीआरएस का पार्ट रहेगा, जो हमें वो डिफरेंस शो करना पड़ेगा उसमें। तो ये मेनली बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट होता है, जो हम अपनी बुक्स जो मेंटेन कर रहे हैं और जो बैंक स्टेटमेंट में एंट्रीज आ रही हैं उसका डिफरेंस होता है। जो कुछ कंपनीज होती हैं जो डायरेक्ट ही बैंक स्टेटमेंट से ही एंट्री करती हैं, तो उस केस में बीआरएस नहीं होता है। जो अगर अपनी बुक्स सेपरेट मेंटेन करके एंट्रीज करते हैं और फिर मंथ एंड पे या ईयर एंड पे रिकंसाइल करते हैं उसको, तो उस केस में आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की नीड आती है। अगर कोई क्वेश्चन है तो कोई डाल सकता है अभी। तो अब क्वेरी सेशन है, अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो हैंड रेज कर सकता है, मैं उसको अनम्यूट करके उसके क्वेरी का आंसर कर सकते हैं फिर।
Please raise hand if anyone have a query. मैं एक बार समराइज कर देता हूँ, फिर इसको क्लास को क्लोज करते हैं, अगर किसी की अभी कोई क्वेरी नहीं है तो। जो टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमने स्टार्ट किया था, जिसमें ये 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जिसमें से कोई भी चूज करके एज पर जो भी उसका रहेगा, जिस टाइप का बिजनेस है उसको चूज करके बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। उसका मैंने इनकॉर्पोरेशन का भी तरीका बता दिया था, अगर स्टार्ट करना है तो उसको कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, क्या उसके लॉसेस हैं, किस कैटेगरी में, ये सब कंपैरिजन है उसका। टैक्स में क्या लॉस है, टैक्स में किस में बेनिफिट है, वो सब हमारा डिस्कस हो गया है, कैसे उसको इनकॉर्पोरेट करना है। ये हमारी जनरल अकाउंटिंग एजम्पशंस क्या रहती है बेसिक अकाउंटिंग को करने के लिए, क्या हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स रहते हैं, ये अकाउंटिंग रूल्स हो गए हमारे, जो कोई भी जर्नल एंट्रीज के लिए आपको इसको फॉलो करना होगा। फिर जर्नल एंट्रीज आपकी अकाउंटिंग रूल्स के हिसाब से आप जर्नल एंट्री कर सकते हैं, फिर उसको वही एंट्रीज आपकी लेजर्स में पोस्ट होती हैं, लेजर्स का बैलेंस आपका ट्रायल बैलेंस से पोस्ट होता है, वो ट्रायल बैलेंस से आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, बैलेंस शीट, पी एंड कैश फ्लोज। अगर किसी क्वेरी है तो आप पूछ सकता है, हैंड रेस कर सकते हैं, नहीं तो हम इस सेशन को क्लोज करते हैं आज। हम शॉर्टकट की प्रोवाइड कर देंगे आपको पीपीटीज में, टैलीज की जो भी शॉर्टकट कीज होती है। ओके, थैंक यू सो मच ऑल, so we'll meet again tomorrow. Thank you.